अच्छा क्यों नहीं बोल पाता ये बिजनेसमैन, चल मैं हूँ, क्योंकि वो खुद डरा हुआ है, उसने करके देखा, पास बैड एक्सपीरियंस की वजह से वो अटक गया, अब हिम्मत ही नहीं होती उसकी। वो किसी को इंटरव्यू भी करता है तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एनर्जी बोल रही होती है कि तू छोड़ जाएगा, तो वो छोड़ ही जाएगा। सो यू हैव टू ओवरकम दिस, एंड दिस मेनी बिजनेसमैन डोंट अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज कि आपकी सोच, माइंडसेट जिसे हम कहते हैं, आपका इमोशनल सेटअप, वो आपके बारे में सब कुछ बयां कर रहा है सामने वाले को। Namaskar, welcome friends to Golden Nuggets with Juhi. Golden Nuggets is about having deep, beautiful conversations with beautiful people, which will give perspectives that has potential to give clarity. Clarity gives us power to make good decisions and leads to a joyful life. My purpose and mission is to spread clarity and joy through Golden Nuggets. If you like what you hear, please subscribe to our show. It helps us reach more meaningful people and get great conversations to you. If our chat touches your heart, share it with someone you care about. And if you have a moment, a quick review would mean a lot to us. Today we have with us Kishore Chenani. He is a relationship skills and leadership coach and a growth mindset specialist. He helps entrepreneurs and leaders build extraordinary teams by mastering relationship skills and unlocking their true potential. With over 2 decades of experience in corporate leadership with companies like Genpact, Tata AIG and HDFC Bank, he is now empowering individuals and organizations to thrive through mindset shifts and emotional intelligence. Some topics that we will cover today are why strong relationships are key to great leadership, how to build high-performing teams with trust and communication, simple mindset shifts for personal and professional growth. Watch till the end. I'm sure you're going to take lots of learnings and perspectives home today. So thank you so much. So Namaskar Kishore. Thank you. Welcome to the podcast. It's an absolute pleasure to have you with me. And I'm really looking forward to this conversation. I'm very excited. Are you? Yes, absolutely. Okay. Tell us what you do. You know, our audience, I think they would love to know. क्या करते हो? Yeah. So 22 years of my life corporates में काम किया, HDFC, Tata's, Genpact. I was vice president with Genpact for almost 12 years. Then 7 years पहले मैंने छोड़ दिया जॉब, और with a specific intention कि leadership coaching, especially जो small medium businessmen है, उनको मुझे कॉर्पोरेट तक लेके आने में, जो मैं चाहता था रियली कि अगर छोटे कॉर्पोरेट्स रियली ये लोग बना सकें, सो दैट विल बी फैबुलस फॉर आवर कंट्री। क्योंकि कॉर्पोरेट्स तो जो ग्रोथ कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन स्मॉल मीडियम बिजनेसमैन मेरे दिल के स्पेशली करीब था। क्यों था मैं बताता हूँ, उसका भी कारण है कि मेरे मामा जी के बेटे मुंबई में, सो मी एंड हिम वर वेरी क्लोज, और उनकी एक छोटी सी दुकान थी टाउन साइड में, जो करीब 6 फीट हाइट, 3 फीट डेप्थ और आई थिंक 4 फीट का विड्थ, और हम स्टूल पे बाहर बैठते थे। तो जब भी मैं जाता था वहाँ तो हम दोनों बाहर बैठते, फिर कस्टमर आता उसको डील करते। क्या चीज़ की दुकान थी? तो उनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थी, ठीक है, और घर में ही मैन्युफैक्चरिंग होती थी, लेडीज़ बैठती थी, और बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत। आई वॉज रियली इंस्पायर्ड, क्योंकि मतलब 7:21 की लोकल पकड़ना, रात को 8, साढ़े 8 घर आना, एक संडे सिर्फ छुट्टी होती थी, और ऐसे उन्होंने ना करीब 30-35 साल काम किया। और इस बीच में जब मैं उनसे पहली बार मिला, आई थिंक आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड और समथिंग, 15 साल का। और बाद में ऑफ कोर्स मेरी इंजीनियरिंग हुई, MBA हुई, मैंने जॉब्स में बड़ी बड़ी टीम्स बनाई। मतलब टाटा में मैंने 1 साल में 1200 लोगों की टीम खड़ी की थी। अरे बाप, जो आज भी शायद रिकॉर्ड है, जो अभी भी मैं टच में हूँ बहुत लोगों से। तो मैंने मेरे अपने करियर को ऐसे जूम करते देखा। फिर बीच बीच में मैं जाता था बॉम्बे, मिलता था, तो मैं ये देखता था, मैं उनको बोलता भी था, आप टीम क्यों नहीं बनाते हो? बोले टीम ट्रेन करूँगा, छुट जाएगी। किए, करके देखिए, क्या बात करता, कोई नहीं टिकता।
अब मैंने ये देखा कि एक माइंडसेट है जिसे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो यहाँ टीम्स बना रहे हैं, हाँ 10 20 30 40% भी लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन 60 तो टिक रहे हैं ना, और उन्हीं की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं. हाँ, correct. And that's why they are growing, because there are old people, old teams which are very well bonded in the system. And the system also is such that it retains, वो उनको जोड़ के रखता है, उनको अच्छे खासे रिवॉर्ड मिलते हैं. मेरे को जॉब में बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिले, मेरा अपना घर बनाया, BMW गाड़ी ली, है ना, सब कुछ हुआ, सारे सपने पूरे हुए. तो अब ये छोटा बिजनेसमैन इमोशनल हो जाता है. छोटा बिजनेसमैन कहता है यार मैं छोटा हूँ, मैं कहाँ ये टीम वीम बनाऊंगा, इनके इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिज़ाइन करूंगा, इनको करियर पाथ दिखाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है. और वो बेचारा खुद ही लगा रहता है. तो जब मैंने ये देखा, घर में ही देखा, चैलेंज देखा, तो मैंने कहा यार ऐसे तो हो लिया इंडिया प्रोग्रेस, क्योंकि कॉर्पोरेट्स तो एक लिमिटेड ही है. अब चलो स्टार्टअप्स आकर के वो करने लग गए हैं, बट वो उतनी फंडिंग या उतना कॉर्पोरेट सेटअप कितनों को मिलता है. तो अनटिल एंड अनलेस ये छोटा बिजनेसमैन जब तक इस माइंडसेट को शिफ्ट नहीं करेगा, तो मैंने कहा यार मुझे यही करना है, क्योंकि सब कुछ लिटरली हो ही चुका था, लाइफ में अकम्प्लिश हो चुका था. तो दिल से जो आवाज़ आ रही थी वो तो यही आ रही थी. तो देन आई क्विट, एंड लास्ट 7-8 years से आई एम वर्किंग विद स्मॉल मीडियम बिजनेस entrepreneurs and helping them overcome this whole emotional resistance and being open mentally to work on themselves, to create whatever shift they need to create in terms of their personality, their aura, to pull the good people. भाई एक तरफ तो इतने सारे लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको सही गाइडेंस नहीं है, उनके साथ कोई लगता नहीं है कि भाई पीठ पे हाथ रखे और बोले कि चल मैं हूँ. अच्छा क्यों नहीं बोल पाता ये बिजनेसमैन चल मैं हूँ? क्योंकि वो खुद डरा हुआ है. उसने करके देखा, पास बैड एक्सपीरियंस की वजह से वो अटक गया. अब हिम्मत ही नहीं होती उसकी. वो किसी को इंटरव्यू भी करता है तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एनर्जी बोल रही होती है कि तू छोड़ जाएगा, तो वो छोड़ ही जाएगा. सो यू हैव टू ओवरकम दिस. एंड दिस मैनी बिजनेसमैन डोंट अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज, कि आपकी सोच, माइंडसेट जिसे हम कहते हैं, आपका इमोशनल सेटअप, वो आपके बारे में सब कुछ बयां कर रहा है सामने वाले को. तो उसको समझ के उसको एनर्जी लेवल पे वो फीलिंग आ जाती है कि भाई मतलब एक दूसरे को आई जाती है. अनकॉन्शियसली हम जुड़े हुए हैं. तो मेरी बिलीफ सिस्टम में अगर ये चल रहा है यार जूही मैं तो तेरे को ट्रस्ट नहीं करता भाई, तो तुम्हें दिख जाएगा कि मैं ट्रस्ट नहीं करता. मैं चाहे बोलूं कुछ भी नहीं, बट यू विल गेट इट. अब ये चीज बिजनेसमैन को समझनी ही पड़ेगी, बस यही समझा रहा हूँ. तो ये आप किशोर किस तरह से करते हो? मीनिंग अभी द वे you know coaching industry is booming and it's a good thing because I myself have gone through numerous coaching sessions and I have consultants in my business and you've also coached me at some in previously, so I think it's beautiful and I think होना भी चाहिए. But then what is the differentiator? जैसे अभी आपकी क्या USP है या कोई कैसे आएगा और क्यों आना चाहिए? तो जैसे जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, मुझे अच्छी टीम मिलती नहीं है, टीम टिकती नहीं है, मिलती भी है तो टिकती नहीं है. कस्टमर से नेगोशिएट करना मुझे नहीं आता. कस्टमर भी जो है वो 2-4 हज़ार रुपये इधर उधर कहीं कम मिला तो छोड़ के मुझे चला जाता है. तो आई टेल पीपल दैट देखो जो मेन रीज़न है वो है आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स. आई रियली एग्री. हाँ, रिलेशनशिप बिल्डिंग ना हमें स्कूल में ना कॉलेज में कभी भी एम्फेसाइज ही नहीं किया, ना माँ बाप ने किया होता कभी, है ना. ठीक है चल रहे हैं बढ़िया है, बट एक्चुअली आप देखो, ध्यान से देखो, एंड आई ऑलवेज से दिस टू बिजनेसमैन कि अच्छा पहला ग्राहक कहाँ से आया था? तो नहीं, हाँ वो तो किसी दोस्त रिश्तेदार, उसने ही पहली बार मुझे कुछ बुलाया, कुछ ऑर्डर दिया. अच्छा फिर दूसरा तीसरा चौथा कहाँ से आया? बोले उसने बोला. अरे भाई क्यों बोला? क्योंकि ट्रस्ट था. ट्रस्ट इज बेसिक. अब ट्रस्ट ही आज की तारीख में नहीं है लोगों को. ट्रस्ट की वजह से ही लोग मेरे पास भी नहीं आते हैं, किसी कोच के पास भी नहीं जाते. अरे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे ये सब कहने की बातें होती है, एक्चुअली तो नहीं होता, वगैरह वगैरह दिमाग में चलता है. तो ट्रस्ट नहीं आता. तो मैं बिजनेसमैन को कहता हूँ भाई तुम्हारा भी क्लाइंट तो ट्रस्ट नहीं कर रहा ना, मेन इशू तो ट्रस्ट का ही है. तो ट्रस्ट कैसे आएगा बगैर रिलेशनशिप बनाए?
नहीं सर रिलेशनशिप बनाते हैं तो उल्टा वो तो फ़ायदा उठा लेते हैं। भाई तुम फ़ायदा उठाने देते हो, जब भी तो फ़ायदा उठाएगा कोई, मैं दूसरे का कैसे फ़ायदा उठाऊँ अगर तुम उठाने नहीं दो। तो इमोशनल मैनेजमेंट इसके साथ बहुत ज़रूरी हो गया। हम फ़ायदा क्यों उठाने देते हैं किसी को? कस्टमर के सामने भी कस्टमर नेगोशिएट करता है, प्राइसिंग अच्छी मांगता है, हमारे अंदर का डर क्या है? एक इमोशन है। अब डरे क्यों हुए हैं कि अरे यार सेल छूट जाएगी, अरे यार तनख्वाह देने को पैसे नहीं होंगे। आप डेस्परेशन से कर रहे होते हैं सब चीज। तो डेस्परेशन भी एक इमोशन है। तो मेरा जो यूएसपी है वो यही है कि आप अपने इमोशंस को समझ के इमोशनल मैनेजमेंट के द्वारा डीप बॉन्डिंग और रिलेशनशिप बनाना सीखो। ये अभी तक किशोर कितने लोगों के लाइफ्स में इम्पैक्ट कॉज किया है? कितने मैंने गिनना छोड़ दिया ऑनेस्टली, बट आई थिंक हर महीने हमारे पास अबाउट 125 लोग आते हैं और पिछले 7-8 साल से आ रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ प्राउडली कि इतना कोर शिफ्ट आता है जब इंसान ये देखता है कि एक तो मेंटल पीस बहुत आती है, क्योंकि इमोशंस ही आपको हाईजैक कर रहे होते हैं। आप एट पीस नहीं हो, आप एट ईज नहीं हो, आप शांत नहीं, आप शांत नहीं है। अगर मन शांत नहीं है तो आप सामने वाले से कनेक्ट कैसे करोगे? सामने वाले को दिख रहा है आप कुछ और सोच रहे हो, अब तो कहीं और हो, आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, तो ट्रस्ट तो टूट गया। कस्टमर भी ये देख रहा है यार तुम तो डरे हुए हो। हर रिलेशनशिप में इट्स आई थिंक द ग्राउंडिंग अप इन सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल इन लाइफ इज रिलेशनशिप, एंड आई डोंट थिंक वी नर्चर इट इनफ। अपने रिलेशनशिप स्किल्स हो तो इट कॉजेज सक्सेस, इट कॉजेज पर्सनल फुलफिलमेंट, इट गिव्स यू लीडरशिप एज। तो हर तरह से आई थिंक रिलेशनशिप्स पे काम करना तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के समय में। एंड लाइक यू सेड इमोशनल मैनेजमेंट, यू सेड राइट, कि आप उसके द्वारा आप ये स्किल एम्पावर करते हो बिजनेस ओनर्स को। बट व्हाट आर द टूल्स, व्हाट डू यू यूज टू एम्पावर देम? हाउ? फर्स्ट थिंग टू डू बिफोर यू मैनेज समथिंग इज टू अंडरस्टैंड। भाई गाड़ी सीखनी है, तो सबसे पहले गाड़ी समझनी पड़ेगी। ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये ब्रेक है ना? आप समझोगे उसके बाद ही तो उसकी मास्टरी लोगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, जो बहुत लोगों को नहीं आता। तो आई जस्ट इंटरप्ट हियर। आप अगर ये करवा रहे होते हो, एंड आई ऑलवेज फर्मली बिलीव दैट अपन कुछ भी किसी को करवाते हैं तो खुद भी इम्बाइब करना चाहिए खुद को। मुझे अगर ड्राइविंग नहीं आती, मैं तुम्हें ड्राइविंग कैसे सिखाऊंगा? हाँ, तो आपने सबसे पहले ये बताइए किशोर कि आपने अपने ऊपर किस तरह से काम किया है, एंड व्हाट हैव यू डन टू बी एबल टू ब्रिंग दैट इम्पैक्ट इन अदर पीपल्स लाइव्स? तो जब मैं कॉर्पोरेट्स में ही था ना, तो वहाँ भी मैंने देखा था कि कोई किसी पे चिल्ला रहा है, कोई डांट रहा है। अब उसे नहीं पता कि मैं कितना रूड हो रहा हूँ, कितना हार्श हो रहा हूँ। दूसरे तो देख रहे हैं, और ऑब्वियसली जो सुन रहे हैं आपकी डांट या गुस्सा, वो मन ही मन आपसे तो डिस्कनेक्ट हो ही गया। कहीं ना कहीं वो ये भी कहता है यार कि यहाँ काम नहीं करना, यहाँ मेरा फ्यूचर नहीं। डिसएंगेज्ड हो गया, कंप्लीटली टोटली डिसएंगेज हो गया। वो फ्यूचर देखना अपना बंद कर देता है, और कहीं भी जाएगा ऑब्वियसली तो 20-30 सैलरी परसेंटेज हाइक तो कहीं भी गिवन ही है, ये तो अंडरस्टूड ही है। तो फिर जब वो डिसएंगेज होता है, वो ढूंढना शुरू करता है, उसको जॉब मिल जाती है, हाइक मिलती है, फिर वो आके रेजिग्नेशन देता है। भाई क्यों जा रहे हो? सैलरी अच्छी मिल रही, रेजिग्नेशन अच्छा मिल रहा है। तो रीज़न ये हो जाता था कि सैलरी अच्छी मिल रही है इसलिए जा रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। लेकिन एक्चुअली अंडरलाइंग रीज़न जो है वो है इमोशनल मैनेजमेंट। उसके बॉस को करना नहीं आया। तो व्हेन आई सॉ दिस, एंड आई ऑल्सो सॉ कि मेरे भी इमोशन बहुत हाई रहते। मेरा गुस्सा ऐसे मतलब ज़बान की नोक पे कहते हैं ना, वैसे था। तो अगर कुछ नहीं हुआ ढंग से तो इमीडिएट ब्लास्ट होता था। फिर मेरे एक बॉस थे और बहुत अच्छे मेंटर थे मेरे, Les Forrest. He was a Scottish gentleman. He gave me this feedback. So he wrote it down on a piece of paper. He said, you wear your heart on your sleeve. He put it very nicely. He was a nice person. I didn't understand what he's saying. But he said,
तू दुखी है तो चेहरे पे दिख रहा है तू दुखी है, तू गुस्सा है तो चेहरे पे दिख रहा है गुस्सा है, दूसरे वाले को तो दिख रहा है, दूसरा कहेगा यार अभी इससे बात नहीं करनी, अभी ये अपसेट है, इसका मूड ठीक नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न टू मैनेज योर एनर्जी, योर इमोशंस एज अ लीडर. अदरवाइज पीपल विल नॉट कम टू यू. भाई आप नेचुरली देख लो, अभी कमरे में कोई गुस्सा बैठा है, कौन जाएगा उसके पास? कोई नहीं जाता, सब दूर भागते. यहाँ डरा हुआ भी है ना, तो भी उसकी एनर्जी इतनी लो होती है. आप कहोगे छोड़ दे यार इसको. मैं तो खुद सेंस करती हूँ, यू फील सो ड्रेन्ड इन विद अ पर्सन हु इज लो ऑन एनर्जी, और उसके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, तो यू डोंट लाइक टू बी अराउंड. मैं मेरे अराउंड भी होता ही होगा कि पीपल डोंट लाइक टू बी अराउंड मी आल्सो व्हेन आई एम इन दैट. इट्स वेरी सटल, बट वो आपकी कहते हैं ना कि आप बोलो उससे पहले आपकी एनर्जी सब बयां कर देती है. तो इसी चीज को समझना होगा, सीखना होगा. सो आई अंडरस्टूड कि वाई हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज. अच्छा, उस टाइम में ना कोचेस वोचेस नहीं होते थे, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था. मैंने कहा यार ये कैसे होगा, ये तो बड़ा टेढ़ा काम है, और ग्रो तो करना है लाइफ में, ऐसे थोड़ी. और ग्रो कैसे करोगे, अकेले थोड़ी करोगे, टीम तो चाहिए. वो टीम चाहिए जो आपके साथ खड़ी हो, स्पेशली जब प्रॉब्लम होती है तब वो खड़ी हो आपके मतलब साथ. आप समझ सको एक दूसरे को, एंड यू कैन रिलाई एंड यू कैन ट्रस्ट. You trust, you rely, you have somebody who's willing to own something, take responsibility. क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर जाते हो ना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी है. आज बिजनेसमैन के लिए भी वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सेकंड लाइन नहीं बनती. बनती है तो ओनरशिप नहीं लेती, सारा भार तो मेरे कंधे पे है. अरे भाई आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, वो आपकी क्यों लेगा? हाँ, सही है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन, नेवर गिवन. तो ये हम सीखते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, तेरी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं हूं ना. जब आप कहते हो मैं हूं ना, तो सामने वाला कहता है हाँ सर मैं भी हूं ना, आप बताओ मुझे को क्या करना. And I think support also goes beyond work also. You care about how they're feeling. You feel good with your team, no? See, अरे भाई इंजॉय भी तो करेंगे लाइफ को. आप ऐसे ही सर्वाइवल में जो है परेशान हो के चलोगे, चिंता में सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रखी है. अभी टुडे आई एम रिलैक्स्ड इज बिकॉज द टीम इज देयर. आई हैव ऑलवेज बीन रिलैक्स्ड. You know how that was because thanks to my mentor who showed me this. Although coming back to your point on कि मैं कैसे सीखा ये, तो मेरे को तो सिखाने वाला कोई नहीं था. मैंने बुक्स पढ़ी, फिर बाद में कुछ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आए. तो आई रिमेंबर द फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आई डिड वाज 2008. उसके बाद तो मेरे छोड़ने ही नहीं. मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे पर्सनली ग्रो करना है, अदरवाइज ग्रोथ नहीं है. आई फर्मली बिलीव दिस, एंड मैं खुद पे भी अप्लाई करती हूँ कि पर्सनल ग्रोथ इज द पाथ टू फुलफिलमेंट. आई वुड से सक्सेस तो मैं बोली पर्सनल ग्रोथ इज द पाथ टू फुलफिलमेंट in life. Yes. See, when you are fulfilled, your energy aura is something else. You're not desperate. Correct. Desperate आदमी के पास कोई नहीं जाएगा. अब लोग बोलते भी मैं desperate कैसे ना हूँ, सेल ही नहीं आ रही. But understand कि सेल नहीं आएगी जब तक तुम desperate हो. It is interlinked. Correct. कोई कस्टमर नहीं आपसे बात करना चाहता क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है. पुशी हो ना. हाँ. आप पुशी हो जाते हो उसमें, डेस्परेशन में आपको पता नहीं होता आप कर रहे होते हैं. तो मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए. अब मतलब इंटरनेशनल, नेशनल, आप नाम लो, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने किया हुआ है. और फिर मैंने क्या किया, उन सब ट्रेनिंग प्रोग्राम में से जो बेस्ट नगीने होते हैं ना, वो लेके और अपना एक डिज़ाइन किया कि कैसे मैं किसी को लेके चलूँ A to Z, स्टेप बाय स्टेप, कि वो अपनी इमोशंस को समझे, इमोशनल मास्टरी कैसे करे. कैसे अभी मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं शिफ्ट हो करके उस गुस्से को न सिर्फ जड़ से ख़त्म कर दूं विद इन मिनट्स, बट ऑल्सो कम इन टू gratefulness, creation mode, absolutely. So when you come into loving, caring, understanding mode rather than complaining, blaming mode, where you're getting angry, irritated, frustrated, or you are fearful, to shift to this where you are committed, loving, caring, understanding. So how do you do this shift? So this is a roadmap which I've created, a framework step by step. Right from understanding emotions very very well to mastering them and causing a very deep shift. तो क्या होता है कि emotions आते कहाँ से?
ये समझना होता है। तो इमोशन कैसे आता है? एक नेगेटिव थॉट आता है आपको, तो आपको गुस्सा दिला देगा या डरा देगा। अभी याद आ जाए, अरे यार वो पेमेंट फंसा हुआ है यार, बहुत टाइम हो गया आया नहीं, यू विल गो इनटू फियर एंड रिएक्टिव मोड, यू विल सल्क, यू विल फील लाइक अ विक्टिम, यार मेरे साथ ही ऐसा होता है। तुरंत फोन उठाओगे, उसको डांट दिया, उसको ये बोल दिया, अरे ये कैसे नहीं हुआ। किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया, घर में निकाल दिया, तो घर में सब आपसे दूर भाग रहे हैं, फिर कनेक्टेडनेस नहीं है, फिर अंदर से संतुष्टि नहीं है, तो ये चेन इफेक्ट होता है। तो जब आप ये देखते हो कि एक नेगेटिव थॉट इतना हैवक कर जाता है इधर, तो थॉट्स को समझना जरूरी हो गया। अब बहुत लोग इस बात से घबराते हैं, सर थॉट्स को कैसे समझें? अरे भाई, हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लाइफ में कर लेते हैं, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस किसी ने ध्यान नहीं दिया, स्कूल में समझाया नहीं, कॉलेज में समझाया नहीं, इतनी सी बात होना चाहिए किशोर, स्कूल कॉलेजेस में ये होना चाहिए। आई एग्री, बट अगर मैं अब एजुकेशन सिस्टम बदलने जाऊंगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। नहीं, मैं आपको आप वेट क्यों करो? आप सिंपल सा सीखो, आ जाओ, ऑनलाइन जूम क्लासेस होती हैं, समझ लो, और खुद का इमोशनल मैनेजमेंट सीख लो। तो थॉट्स को समझना ज़रूरी हो गया। थॉट्स के लिए इस ब्रेन के डिज़ाइन को समझना ज़रूरी हो गया। ब्रेन के डिज़ाइन का मतलब कि एक तो ये कि ब्रेन जो है ना, वो हमेशा नेगेटिव ढूंढता है, गड़बड़ ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसका डिज़ाइन सर्वाइवल है, वो बचाने के लिए बनाया आपको। तो अब आप जैसे कोई दीवार भी देखोगे ना, सामने वो वाइट पोर्शन है दीवार पे, उसको देखो तो ध्यान दोगी तो जो धब्बे लगे हुए ना, उस पर ध्यान जाता है, जो सही दीवार है उस पर ध्यान नहीं जाता। तो सबकॉन्शियसली यू आर लुकिंग फॉर व्हाट इज रॉन्ग। तो you have to understand the basic function of the brain, that it will look for what is wrong. And when you look for what is wrong, you will find what is wrong. When you find what is wrong, you are going to sulk. You're not going to feel happy. अरे यार ये ग्लास यहाँ क्यों रखा है ना? गुस्सा ही आता है, भाई यहाँ नहीं रखना था, है ना? आप खुश थोड़ी होते, अरे वहाँ ग्लास फिर गलत जगह रखा। ओके, so by default your brain is looking for negative. आप नेगेटिव ढूंढोगे, नेगेटिव मिल जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, आप सल्व करोगे। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू ब्रिंग इन अ प्रैक्टिस टू रिवर्स दिस फिनोमेना ऑफ द ब्रेन। कि अगर वो नेगेटिव ढूंढ रहा है तो मुझे कुछ करना होगा, मुझे खुश रखने के लिए, मुझे शांत रखने के लिए। एंड आई ऑलवेज से दिस कि कुछ भी करने से पहले ना, पहले ये देख लो कि इमोशनल स्टेट क्या है। अगर शांत नहीं हो तो अपने पाँव को लाड़ी मार लोगे, सेल्फ साबोटाज करोगे, ये तय है। एकदम गुस्से में हो, मेरे मुंह से जो निकलेगा मेरी इंटेंशन नहीं है। लोग बोलते हैं जी इंटेंशन नहीं थी मेरी। भाई इंटेंशन कौन देख रहा? तूने जैसे कहा वैसे तो एक सेंटेंस में रिश्ता टूट गया। अगला तय कर लेता, भाई इससे बात नहीं करूंगा, इससे नहीं खरीदूंगा। और आप एक्चुअली बाइंग पैटर्न को स्टडी करोगे ना, आपको फोन चाहिए, सबसे पहले आप ढूंढते हो यार मैं जानता किसको, कौन रिलेशनशिप में है, क्योंकि ट्रस्टी वही है कि वो सही गाइड करेगा यार, उधर चलते हैं। आपको फ्रिज खरीदना है, आप कहते हैं यार जानकारी में कौन है। व्हाई? relationships are so deeply wired within us, and we have to understand this. You don't buy your vegetables, fruits, grocery from any Tom, Dick and Harry. You go to your trusted place जहाँ relationship है, और उसने वो relationship तोड़ दिया, आप दोबारा कभी नहीं जाओगे। एकदम फैक्चुअल है ये पूरी साइंस है। तो इसको फिर आपने यू डिजाइंड इट, मैंने उसकी साइंस बना दी। मैंने कहा भाई किसी को समझाना है तो कैसे समझाएंगे, और फिर कोई बात प्रोग्राम अराउंड। हाँ, क्योंकि बात समझने समझाने की नहीं है ना, एक्चुअली करवाने की भी तो है। अगर फर्क ही नहीं आएगा, आप बोलोगे यार क्या कुछ फर्क नहीं आया, तो एक्चुअली वो आना चाहिए। तो आई गिव सम वेरी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस वीक ऑन वीक, जो आप सिंपल करते चलते हो तो आप देखते हो बहुत फर्क आ रहा है। सर समझ में आ रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है, ये पहले से ही दिखने लगता है। तो ऐसे कुछ वन और टू केस स्टडीज और सम एग्जांपल, सम स्टोरीज ऑफ पीपल who've had massive breakthroughs, massive, बहुत सारे हैं, गूज़बम्स आ जाए वैसा कुछ बताइए। अभी जैसे मेरे को डॉक्टर कुणाल महाजन है, अमृतसर के बहुत बड़े पीडियाट्रिशियन हैं, 2 हॉस्पिटल चलाते हैं, एंड ही डिड आवर प्रोग्राम्स एंड ही वाज शेयरिंग कि पीडियाट्रिशियन है, तो अभी 3 दिन पहले एक बच्चा आया, कहते हैं जो 2 दिन का था, एंड ही वाज अ वेरी सीरियस केस, एंड ही डिड हिज बेस्ट बट ही डिड नॉट सर्वाइव।
अब ऑब्वियसली उसका इमोशनल इम्पैक्ट होता है. व्हाई आई एम टेकिंग एन एग्जांपल लाइक दैट इज कि यहाँ पे बहुत सीवियर इमोशनल इम्पैक्ट है हर केस का उनके लिए ऑब्वियसली. कह रहे मुझे बता रहे थे, वीडियो दिया है उन्होंने एक बना के मुझे ये शेयर करते हुए, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस. तो कहते हैं कि मैं सुबह सुबह अपना ड्यूटी करके लंच के लिए घर आ ही रहा था कि रास्ते में था और फ़ोन आया कि वैसा ही एक और केस आया. तो कहते हैं सर पहले तो सीधा मेरे अंदर ना डर आया, बट क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ली है तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे अंदर डर आ रहा है. तो फर्स्ट रिएक्शन तो ब्रेन ने यही दिया मेरा कि मना कर दे, अब मैं एक और नहीं ले सकता. पर फिर आपके दिए हुए टूल्स याद आए. तो कहते हैं मैं अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी साइड में पार्क करी और सबसे पहले आपके टूल्स यूज़ करते हुए अपने अंदर से सारे फियर को बाहर किया. और कहते हैं जैसे ही फियर बाहर निकला मैंने वापस फ़ोन किया, डोंट वरी ले ले. और उस बच्चे को हमने बाद में बचा लिया. एंड ही इज शेयरिंग विद मी. क्योंकि कहते हैं मेरे को बैक ऑफ द माइंड पता था कि अगर मैंने उसको ट्रीट नहीं किया तो इसको यहाँ तो अमृतसर से चंडीगढ़ जाना पड़ेगा. और इस क्रिटिकल स्टेज में वो तो वैसे भी दिक्कत है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. तो ही सेड नो एंड ही वाज सो ग्रेटफुल व्हेन ही वाज शेयरिंग दिस विद मी. मतलब आप सोचिए, इट हैज इम्पैक्टेड एट द डिसीजन मेकिंग लेवल. यस, मतलब क्लैरिटी आ गई. एंड लाइक आई वुड ऑलवेज से क्या क्लैरिटी आने लग जाती है ना लाइफ में, दैट्स व्हेन जॉय फुलफिलमेंट आने लग जाता है. एंड यू क्रिएटेड दैट मोमेंट ऑफ क्लैरिटी फॉर एंड यू नो यू आर आस्किंग एग्जाम्पल्स, सो मेनी सच एग्जाम्पल्स. अगर किसी बिजनेसमैन का ले फॉर एग्जाम्पल, रमेश जी हैं हमारे, सूरत के डायमंड मर्चेंट हैं. तो जब वो आए प्रोग्राम में तो वो कहते हैं सर मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगता था मैं तो बहुत अच्छे से मेरे स्टाफ से डील करता हूँ. अब समझ में आता है कि वो तो मेरे सामने आने से थर थर काँपते, कुछ बात ही नहीं करते थे, है ना. और मेरा रिएक्शन तो ऐसे निकलता था, गुस्सा. और व्हेन ही स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दिस and see himself. That's very important. Very rightly said, Juhi. Ki when you raise your conscious awareness, so 5% of our mind is conscious mind, 95% is unconscious. So we're not even aware. आप किसी भी गुस्से करते हुए बंदे को देखोगे तो उसको पता ही नहीं है कि मैं गुस्से में क्या बोल गया. क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड बंद हो गया, अवेयरनेस नहीं है. सो व्हेन यू स्टार्ट टू बिकम अवेयर, दैट्स द फर्स्ट टूल वी डू इन आवर प्रोग्राम कि अवेयरनेस आए. तो बिकमिंग सेल्फ अवेयर कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ. एंड देयर वाज सो मच शिफ्ट विद इन 3 months. ही सेज कि बंदे जो छोड़ के जा रहे थे वो वापस आने लग गए. अरे बाप. और वो आके बोलने लगे कि सर आप में इतना फ़र्क है. और सालों का जो व्यवहार उनका रहा होगा और फिर ये मतलब ये 2-3 महीने का शिफ्ट में भी लोग एक्सेप्टेंस में आ गए. मतलब आपके अंदर शिफ्ट आता है ना जूही, तो इमीडिएट लोगों को दिखता है. आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, आप में वो कामनेस आ जाती है, तो लोग कनेक्ट करने लगते हैं. ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन होता है इंटरनल फॉर मेनी पीपल हु डू आवर प्रोग्राम्स. क्योंकि एक सवाल उनके मन में क्या आता है, सर मैं तो बदल जाऊंगा, मेरी टीम कैसे बदलेगी? वो तो सुनती नहीं है, वो तो ढीठ है ना, एसेट्रा एसेट्रा. दिस लॉट filled up here. Correct. So the thing is they are surprised, they are astonished कि अरे मैं शांत हूँ तो टीम शांत हो रही है. जो सुनता नहीं था वो सुनने लग गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप नहीं लेता था वो लेने लग गया. Why is this happening? Because this deep shift in your energy system is pulling. All of us are connected at a very deep level. And that pull has to come. Otherwise, लोग बस काम करने के लिए काम करेंगे, 6 बजे 5 बजे निकल लिए. They're not connected. And that every businessman has to learn how to connect people deeply. Whether it's customers, teams, suppliers, you need that.
And it needs to come from within. It can't be a created facade क्या बस. हाँ, ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ढोंग नहीं चलता. हाँ, of course लोगों को ढोंग दिख जाता है. हाँ. वो समझ जाते हैं कि आप खाली खाली जो है ना मुझे खुश करने के लिए ये कर रहे हो. दिखता है. It's a facade. हाँ. So facade doesn't work. Doesn't it? You have to really do this internal work within yourself. किशोर, I firmly believe कि आप करना चाहते हो, आपकी विलिंगनेस से वो चेंज आता है. हाँ. तो जैसे कई बार ऐसे भी तो होते होंगे ना, प्रोग्राम में ज्वाइन तो कर लिया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन अंदर से विलिंगनेस नहीं है. वो भी ऐसे लोग भी आते ही होंगे. सही बात है. सी मोस्ट पीपल वांट शॉर्टकट्स, हैक्स. सर 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दे दो, मैं भी बदल जाऊं, मेरी टीम को भी खिला दूं, वो लॉयल हो जाए, जो मैं कहूँ वो सुने. बट ऐसा कुछ नहीं होता. ओके. You have to understand step by step and work on yourself. There is no other way. Willingness तब आती है लोगों में जब वो एक तो ये समझ लें कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है. दूसरा, पेन देखते हैं, जब वो स्ट्रगल देखते हैं कि फिर छोड़ के जा रहा है, फिर फ़ोन नहीं उठा रहा टीम मेंबर, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, अभी तो ये मैंने 3रा हायर किया था, अभी 4था भी आएगा, वो भी छोड़ जाएगा, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है. तो जो पेन है ना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइवर विच ब्रिंग्स पीपल टू अस. सो your willingness to work will come from how much pain and suffering have you gone through. And still some people are in blame mode. वो इकोनॉमी को ब्लेम कर रहे हैं, मोदी जी को ब्लेम कर रहे हैं, अच्छे दिन तो आए नहीं. यू नो, ब्लेमिंग इतना ज़्यादा होता है. टू लुक विद इन एंड सी कि मैं सब कुछ बदल सकता हूँ इज डिफिकल्ट. If we go back into your past, Kishore, one you said that you had मामा जी, and वो कहीं ना कहीं वो स्टोरी आपको इंस्पायर की. बट और क्या ऐसी चीज़ें थी दैट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि मैं जो कर रहा हूँ फ्रॉम योर कॉर्पोरेट जर्नी, फ्रॉम योर यंगेस्ट सेल्फ एज यू वर ग्रोइंग अप. अब तो आप तो खुद के पास्ट में जाते ही होंगे, एंड यू मस्ट बी डिस्कवरिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो ये नीड कहाँ से अराइज हुई टू कोच पीपल? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई सेड, पेन एंड सफरिंग इज द बिगेस्ट ड्राइवर. तो मैंने खुद सफ़र किया, मैंने पेन देखा है जब अच्छे लोग छोड़ के जाते हैं, या कस्टमर क्या चाहता है समझ ही नहीं आ रहा. आप तो सब कुछ करने के लिए रेडी हो, और वो बस आपके ऊपर चिल्ला रहा है, नाराज हो रहा है, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग. सो that pain and suffering brought me first for myself to understand कि हो क्या रहा है, मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ, क्यों छोड़ के गया ये. मुझे तो लग रहा है यार मैं बहुत अच्छा हूँ इसके साथ, लेकिन कुछ तो है कि उसको अच्छा नहीं लगा, और वो मेरे अनकॉन्शियस बिहेवियर में है, मुझे दिखा ही नहीं, मैं अवेयर ही नहीं हूँ. सो व्हेन दिस पेन एंड सफरिंग ब्रॉट मी फर्स्ट टू द स्टेज ऑफ कि मुझे समझना होगा, मुझे देखना होगा, एंड देन आई रियलाइज यार मैं तो बहुत रूड हो जाता हूँ, और ये तो मैंने अच्छे से नहीं बोला. एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू पॉइंट आउट, यार तू बहुत रूड हो गया. मैं कहता कब? सो आई रियलाइज कि ये तो मेरा दोस्त है जिगरी जो बोल रहा है यार तू बड़ी रूडली बोल रहा है. और उसे बड़ा बुरा लग रहा है, उसे चुभ रही है बात, और वो इतना प्यार करता है मुझसे कि बता भी रहा है कि भाई तू बहुत रूड है. एंड देन आई सेड, सो देन आई ऑब्वियसली गॉट ऑन दिस जर्नी, और मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मैं ऐसा नहीं होना चाहता, है ना. तो all that happened. When I did all that and understood now कि यार ये चीज़ मैं बदल सकता हूँ, फिर मैं अपने आसपास देखा, मैंने कहा बहुत लोग रूड हैं, उसकी वजह से करियर में सफ़र कर रहे हैं. सबसे पहले तो कलीग्स ही दिखते थे बिकॉज आई वाज इन अ कॉर्पोरेट जॉब. आई थिंक करियर से ज़्यादा पर्सनल लाइफ आपकी एकदम खत्म. पर्सनल लाइफ तो देखो दिखती नहीं है ना, कोई दिखाता नहीं है, बट जो दिख रहा है वो तो करियर दिख रहा है. यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि भाई ये जो है मेरा कलीग, मेरा पीयर या मेरे जूनियर भी ये बढ़ नहीं पा रहा लाइफ में. आप जैसे एक जगह हो गए, आप सब जगह वैसे ही तो हो गए. एब्सोल्युटली राइट. भाई अगर मैं यहाँ इरिटेशन से भरा हुआ हूँ तो मैं घर जाऊँगा तो इरिटेशन से भरा हुआ हूँ, है ना. और एक्चुअली हम देखें, आई विल कम टू योर अदर पॉइंट ऑफ कि ये सब इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बचपन के हैं. बचपन में
हमारे साथ जो अनप्लेजेंट एपिसोड्स हुए, जो अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं थे, उसका ट्रॉमा हमारे अंदर इतना बैठ जाता है और वो रिलीज नहीं हुआ होता, तो वो समझा भी नहीं, जाना भी नहीं, रिलीज का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो वो आज भी बाहर निकल रहा है। भाई जैसे मैंने मान लो कॉफ़ी भरी और घूमा और तुमसे टकरा गया, कॉफ़ी गिरी, अब कोई पूछेगा भाई कैसे गिरी, अरे जो ही देख के नहीं चलती यार, है ना, इसलिए कॉफ़ी गिर गई। बट द फैक्ट इज कि इसमें कॉफ़ी थी इसलिए कॉफ़ी गिरी, इसमें पानी होगा तो पानी गिरेगा, खाली होगा तो कुछ नहीं गिरेगा, है ना, प्यार होगा तो प्यार झलकेगा, है ना। वो तो है ही, बट हाँ. मैं एक और एंगल देख रही हूँ। हाँ, उसने फट से ब्लेम डाल दिया कि जूही Reaction, ऐसे नहीं, क्या यार मैं सडन टर्न हुआ, उसके गिर गया। द सिचुएशन को आप बोल कैसे रहे हो, आपने सामने वाले पे डाल दिया। बिकॉज हैबिट हो गई है ना, हाँ, अनकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स बन गए हैं ब्लेम के। बचपन से क्या देखा, मम्मी ने ब्लेम मुझ पे डाल दिया या उसने ब्लेम उस पे डाल दिया, भाई बहन में होता है, भाई बहन में होता है, या फिर ये स्कूल छोटा में सा फ्रेंड्स में होता एग्जाम्पल, है। हाँ, छोटा एग्जाम्पल जैसे गिर गया बच्चा तो अरे मारो मारो जमीन को, मारो, हाँ. यू नो, हिट द फ्लोर, तो मेरा बेटे को मार दिया उसने, हाँ, चोट लग गई, है ना? सो दैट इज द मोस्ट करेक्ट। सो यू फोकसिंग ऑन आउटसाइड, योर मेंटल प्रोग्रामिंग इज हैपनिंग कि गड़बड़ बाहर है। हाँ, तो जब लोग प्रोग्राम में आते हैं तो सबसे पहले यही समझाना पड़ता है कि यहाँ है, जो है यहाँ है, यही समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ, तो पहले ये समझाना पड़ता है, फिर अपने ऊपर काम करना शुरू करता है वो, नहीं तो ब्लेम बाहर ही रहता है। तो बचपन में जो कुछ हुआ उसकी वजह से ही आज हो रहा है। एंड व्हेन आई सॉ दिस इन कलीग्स, टू योर क्वेश्चन, मैं इसमें आया कैसे, क्यों कोचिंग एंड ऑल दैट, कमिंग बैक टू दैट, तो मैं कलीग्स के साथ बैठता था और मैंने ये देखा कि क्योंकि मैं बदल गया हूँ तो दे आर क्वाइट ओपन टू सिट विथ मी एंड आई हैव दैट एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग विच दे लव। सो स्लोली आई फाउंड कि काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मैं उनको समझाता, मैं कहा भाई तू इतना गुस्सा कर रहा है ना, तू वो कैसे सुनेगा तेरी बात। तो हाँ सर, फिर रोने भी निकलते थे कई लोगों के, भरे हुए इमोशन से, डर भरा हुआ है, एंग्जाइटी भरी हुई है, स्ट्रेस भरा हुआ है। फिर जो मैं कुछ जो टूल सीखा था मैं उनको समझाता था, दिखाता था, तो उनको बहुत फ़र्क आता था। फ़र्क आता था, दे यूज्ड टू बी वेरी ग्रेटफुल। जब वो ग्रेटफुल होते थे ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था दिल से कि यार चलो इसकी मदद हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई। एंड ऑब्वियसली उनसे रिलेशनशिप और बॉन्डिंग बहुत गहरी हो जाती है। वो मुझसे कुछ भी आके कुछ भी शेयर करते थे लोग, ऐसी ऐसी चीज़ें जो किसी से नहीं कही उन्होंने। अब ये इतना होने लग गया और मुझे इतना मज़ा आने लगा, क्योंकि कॉर्पोरेट में जिस लेवल तक पहुंचना था यार वो सब कर लिया, वो सब हो गया, तो वहाँ कुछ ड्राइव बची नहीं। कितना करेंगे वही चीज़ें। And here you are impacting lives. Here I was impacting lives. Here I was finding deep fulfillment, connecting with people. Correct. Yeah. Why you called me today? Connection, right? So that started to happen. That started to give me fulfillment. ऐसा नहीं है कि मेरे डर नहीं थे, बड़ा डरा हुआ था मैं भी काफ़ी समय तक। मुझे अपने डरों पे काम करने में बहुत समय लगा, बहुत साल लगे। It's a journey. It's a journey. तो ऐसे नहीं कि And एक दिन रियलाइज ongoing हुआ। ही होता होगा, क्योंकि फिर हाँ। सडनली लाइक पीपल आस्क मी, अब तो यू नो यू हैव डन क्वाइट अ फ्यू एपिसोड्स, तो तुमको अब तो इजी हो गया। आई से नो, एवरी एपिसोड यू फील अरे यू नो द गेस्ट इज न्यू एंड you feel that you know the conversation should hold depth and meaning, and I just feel so much responsibility that that Somebody is finding time. Time is the सबसे precious. somebody is finding time, so if I can take out the best Yes. of that person's you know life's journeys and Yes. best insights and capture that, so it's a huge responsibility. And लोग जो देख रहे हैं वो भी तो time invest कर रहे हैं, so it has to have golden nuggets. Yes. It has to have those Yeah, nuggets. So I think when I have these type of conversations, Kishore, I just feel and I just feel more reinforced क्या यही है मेरी journey, like I want to do this. And I can see that in you right now. The energy is talking. yes, it gives me so much happiness and fulfillment, you know. So so let's come to the golden nuggets round. So are you ready? Golden nuggets. Yeah. Go I ahead. hope I Shoot. can
bring about the golden nuggets from this conversation. Yeah. So, Kishore, which book has profoundly influenced your perspective on leadership? What got you here will not take you there. मार्शल गोल्डस्मिथ. जो यहाँ तक ले आया वो आगे नहीं लेके जाएगा. इनफैक्ट सबसे जो सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है कि अगर हार्ड वर्क मुझे यहाँ से यहाँ तक ले आया तो हार्ड वर्क ही मेरा सबसे बड़ा बॉटलनेक या बैरियर बन जाता है फ्रॉम गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर. पीपल डोंट रियलाइज दिस एंड दीज ट्रेट्स विच गिव यू सक्सेस जो आपको यहाँ तक ले आते हैं वो इतने गहरे बैठ जाते हैं. लाइक हार्ड वर्क फॉर एग्जाम्पल यू नो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था और उसी से सक्सेस मिलती है. वो रिवॉर्ड रीइंफोर्स कर देता है पूरे पैटर्न को हमारे अंदर. तो आप हार्डवर्क ढूंढते हो और आप बिलीव भी नहीं करते हो कि बगैर हार्डवर्क के अगर कुछ ईजी आ जाता है तो आपके तो नहीं, आई डोंट डिजर्व दिस. यू बिकम क्लोज्ड. सो फ्रॉम दिस बुक when I understood this, I really started to work deep, not just with myself but other leaders also, to show them, देखो तुम्हारा ये पैटर्न है, देखो तुम्हारी ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है जो तुम्हें चला रही है, तुम इसको छोड़ोगे नहीं. हार्डवर्क को नहीं छोड़ोगे तो डेलीगेशन नहीं हो पाएगा, ओनरशिप डेलीगेट नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होगी, छोड़ नहीं रहे हो लोगों पे तो वो क्यों लेंगे तुमसे. ग्रो तुम कैसे करोगे. Wonderful. So, Kishore, what's the first thing that sets you up in the day? What is your morning routine habit? I wake up around 4:30. Yoga starts at 4:45, sometimes 4:50. I love yoga. And to the listeners, I will say this thing. पूरा US योगा कर रहा है. अब तो इंडिया भी कर रहा है. बट फिर भी बहुत लोग योगा मिस कर रहे हैं. योगा इज़ नॉट जस्ट बॉडी. It's mind and it's emotional management. It teaches you so much. It is breath work. Breath work manages your emotions. So please don't miss yoga. So the first thing is yoga. Then 7:15 बजे तो मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं. और ये कितने सालों से कर रहे हो आप योगा? योगा करते हुए तो 7-8 साल तो हो ही गए. ठीक है. So that sets you up for your day. हाँ. You invest that Yes, time. absolutely. What's your favorite way to unwind after a long day? I play table tennis. In summers, I do swimming. Swimming is a great way to unwind. Sometimes I watch some good movie. Spend time with my family, just chit-chatting, laughter, fun. Kya raha, kaisa din raha. That's how I usually unwind. If you had to choose, what single word captures your essence? I think energy. Energy, if you learn to manage your energies, I think that is the key. It's not time management, it's energy management. See, when you get into neurosciences, NLP, brain, you understand that time is an experience. You can slow time down if you want. Yeah. So you create your own experience. It depends on your energy. So if your energy is low and you are in a sufferer, victim kind of a mentality, then the experience of time is very bad. But if you are in a blissful state, even when things are not going right, and that's what, अच्छे समय में तो सब अच्छे हैं. जब समय नहीं है सही, जब चीज़ें अनुसार नहीं चल रही हैं, if you are able to learn to manage yourself, then things turn around, people turn around, and that's the beauty to be experienced with energy. So, Kishore, one last question. Any person who's probably alive or not there anymore who has inspired you greatly? I think the person that came to my mind when you asked this question was my grandmother. She was so full of love and care for everyone. And she was such a huge giver. She never wanted anything for herself. And that quality inspired me so much since childhood. There'll be problems, there'll be struggles, fights, but she would be so calm and loving and caring. Once she would come into the room, everything will just melt down and disappear.
So that to me is very close to my heart. Yeah, that's what it is. So, Kishore, I think it has been a lovely talk, and I think there are lots of takeaways, and I think somewhere the conversation has been very very insightful. Relationship is one very neglected skill. Yes. Sadly enough, that's उसमें सबसे ज़्यादा नर्चरिंग चाहिए होती है, because again that's the only path to fulfillment. If you've seen great people who've been very successful financially, even they say the same thing, that we neglected our relationships. हमने बच्चों को नहीं देखा बड़े होते हुए, हमने फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ इनफ टाइम नहीं बिताया, एंड वो वॉइड गैप रह जाती है. So the sooner everybody learns that, I think Very well said. and it's a beautiful mission you are on. So all the best to your endeavor. Thank you so much. It's such a pleasure to be doing this with you, Juhi. I'm glad. It's absolutely. Thank you for the opportunity. Yes. Really. Thank you. Thank you.